بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی داستان کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج اس کی 79 قسط ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کل بات ہو رہی تھی، اس زمانے کا ایک شہر تھا جس کا نام ابلا تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ شاداب اور سرسبز تھا، وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرت ناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور رعایا کو وہ نہایت کم درجہ دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں کیا اور فرمایا کہ کیا تم نے زمین میں گھوم کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے، اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پر شکوہ شہنشاہ آئے اور ہر ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہے۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے۔ اب جب مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، جلد دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھ رہی کہ اسے تو وہاں زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود ایک نوجوان لڑکی تھی، مسلمان لڑکی تھی، اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی اس وقت خدام نہیں آیا۔ زہرا بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے بھر کے منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرا سے کہا خدا نہ کرے وہ اسی بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے۔ زہرا بنت سعود نے کہا کہ آئے گا۔ 4 دن گزر گئے، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرا سہیلی نے اسے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کماندار کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش کرو گی۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے، جس اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، اسی کی عبادت کروں گی۔ زہرا نے کہا آخ خدا نے پیدا کی ہے، آخ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش نہیں کروں گی۔ تو کیسے کروں؟ سوچ لو زہرا، سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ تو میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی ہی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تم یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرا نے کہا اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرا اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی، اور خدام اس پر جان نثار کیا کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر
ईरानी फौज का एक कमांडर था जिसकी नजर ज़हरा बिन्त सऊद पर पड़ गई थी। इसने इस लड़की के बाप से कहा था कि वो इसकी बेटी को बड़ी आसानी से घर से ले जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बेटी को माले गनीमत समझकर नहीं ले जाऊंगा। शिमर ने कहा था, इसे 2 घोड़ों वाली इस बग्गी पर ले जाऊंगा जिस पर दूल्हे अपनी दुल्हनों को ले जाया करते थे। तुम दोनों को वक्त से बताया करोगे कि तुम्हारी बीवी एक ईरानी कमांडर की बीवी है। लेकिन ईरानी कमांडर ज़हरा के बाप ने कहा था, तुम्हारा एहतराम हम पर लाजिम है। अगर लड़की तुम्हारी दुल्हन बनना चाहेगी तो हम इसे नहीं रोकेंगे। तुम खलीज अरबी ईरानी कमांडर ने इस नफरत से जिससे वह हर मुसलमान से बात किया करता था, तू बेटियों को जिंदा दफन करने वाले कौम्स में से एक हो और कहता है कि अपनी शादी का फैसला तेरी बेटी खुद करेगी। ज़रतश्त की कसम, अगर तेरी बेटी ने अपना हाथ मेरे हाथ में ना दिया तो तुझे और तेरी बेटी को इन कोठरियों में बंद कर दूंगा जिनमें कोड़ी बंद है। बहुत थोड़ी मोहलत दूंगा। फिर इसके साथ इसके 3 घोड़सवार सिपाही थे। उन्होंने बड़ी जोर का कहका लगाया था, मदीना बहुत दूर है बदबख्त बूढ़े। एक सिपाही ने इसे धक्का देकर कहा था, तेरा अमीरुल मोमिनीन तेरी मदद को नहीं आएगा। ज़हरा के बाप को और इसके भाइयों को मालूम था कि वो ईरान के एक सिपाही की भी हुक्म अदुली नहीं कर सकते। ये तो कमांडर था। इन्हें यह भी मालूम था कि शिमर इनकी बेटी को उठवा भी सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसे खित्ते के मुसलमानों के दिलों में आग के पुजारियों की जो नफरत थी वो इन्हें मजबूर कर रही थी कि वो इनके गुलाम होते हुए भी इनकी गुलामी कबूल ना करे, और इसका अंजाम कितना ही भयानक क्यों ना हो इसे बर्दाश्त करें। इन्हें अपने अल्लाह ताला पर भरोसा था। ज़हरा और खद्दाम को मिलने से कोई रोक नहीं सकता था। वो फलों के बागात में काम करते थे। जिस रोज शिमर ज़हरा के घर आया था, इसके अगले रोज ज़हरा खद्दाम से मिली और खौफजदा लहजे में खद्दाम को बताया कि ईरानी कमांडर क्या धमकी दे गया, हम यहाँ से भाग न चलें। ज़हरा ने पूछा। नहीं, खद्दाम ने जवाब दिया, अगर हम भाग गए तो ये बदबख्त तुम्हारे और मेरे खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर देंगे, फिर क्या होगा। ज़हरा ने पूछा, जो खुदा को मंजूर होगा। खद्दाम ने कहा, खुदा खुदा खुदा। ज़हरा ने झंझलाते हुए लहजे में कहा, जो खुदा हमारी मदद नहीं कर सकता। ज़हरा, खद्दाम ने इसे टोकते हुए कहा, खुदा अपने बंदों को इम्तिहान में डाला करता है, बंदे खुदा का इम्तिहान नहीं ले सकते। खद्दाम गहरी सोच में खो गया। ये तो हो नहीं सकता कि तुम इस आतिश परस्त शिमर का मुकाबला करोगे। ज़हरा ने कहा। खद्दाम गहरी सोच में खो गया, सोचने लगा। सोचे क्या हो। ज़हरा ने कहा, तुम इस शख्स को कत्ल तो नहीं कर सकते, हमारे सामने एक ही रास्ता है, खुदा निजात का रास्ता भी दिखा देगा। खद्दाम ने कहा, तुम्हें एक और रास्ता भी दिखा सकती हूँ। ज़हरा ने कहा, मुझे अपनी तलवार से कत्ल कर दो और तुम जिंदा रहो, थोड़ी सी कुर्बानी दो। खद्दाम ने कहा, मैं इस नफरत का अंदाजा कर सकता हूँ और शिमर के खिलाफ तुम्हारे दिल में भरी हुई, लेकिन इस पर यह ज़ाहिर करो कि तुम इसे पसंद करते हो, इसे धोखे में रखो। मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? ज़हरा ने पूछा। क्या करने जाओगे? मुझसे हर बात न पूछा करो ज़हरा। खद्दाम ने कहा, मैं खुदाई मदद हासिल करने जा रहा हूं, खुदा की कसम। खद्दाम, ज़हरा ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरी रूह तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। मैं एक दिन के लिए भी इस काफिर की बीवी बनकर नहीं रह सकूंगी। इसकी बीवी बनने का मतलब यह है कि मुझसे तुम ही नहीं, मेरा मजहब भी छिन जाएगा। अगर तुम मजहब की इतनी पक्की हो तो अल्लाह ताला पर हमारी मदद को जरूर आएगा। खद्दाम ने कहा। खद्दाम, ज़हरा ने मायूसी के लहजे में कहा, मैं मजहब की तो पक्की हूं, लेकिन खुदा पर मेरा अकीदा मुतज़लज़ल होता जा रहा है। खद्दाम कुछ और कहने ही लगा था कि बाग में काम करने वाले लोगों में हड़बड़ मच गई, हलचल मच गई। 3-4 आदमियों ने खद्दाम को पुकारा। ज़हरा उठी और वहीं से पौधों में गायब हो गई। खद्दाम ने उठकर देखा, कुछ दूर परे ईरानी कमांडर
शिमर अपने घोड़े पर सवार आ रहा था। इसने दूर ही से कहा था खद्दाम को इसके पास भेजा जाए। खद्दाम आहिस्ता आहिस्ता चलता शिमर की तरफ गया। तेज चलो, शिमर ने घोड़ा इसके दूर से कहा। खद्दाम ने अपनी चाल न बदली। शिमर ने एक बार फिर गिरज कर इसे तेज चलने को कहा। खद्दाम अपनी ही रफ्तार से चलता रहा। शिमर घोड़े से कूद कर उतरा और कुलों पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। बाग में काम करने वाले मुसलमान दम खुद देखते रहे। इन्हें मालूम था कि शिमर खद्दाम की हड्डी पसली एक कर देगा, लेकिन खद्दाम जब इसके सामने जाएगा तो शहर के शिमर का ने हाथ भी ना उठाया। देख कमीने इंसान, शिमर ने खद्दाम से हकारत अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी जवानी पर रहम करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें इस लड़की के साथ न देखूं। अगर तुमने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया फिर क्या होगा? खद्दाम ने पूछा। फिर मैं तुम्हारे मुंह पर एक दो थप्पड़ नहीं मारूंगा। शिमर ने कहा, तुम्हें दरख्त के साथ उल्टा लटका दूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शिमर घोड़े पर सवार होकर चला गया और खद्दाम वहीं खड़ा इसे देखता रहा। खद्दाम इसे किसी ने बुलाया हो और कहा, इधर आ जाओ। फिर इससे 3-4 आदमी की आवाजें सुनाई दी, आ जाओ खद्दाम, आ जाओ। वो पीछे मुड़ा और लोगों के पास जा रुका। सबसे पूछने लगे कि शिमर ने क्या कहा था। खद्दाम ने इन्हें बताया। सब जानते थे कि खद्दाम का जुर्म क्या है। अगर ये मुसलमान आजाद होते, इनकी अपनी हुकूमत होती और ये मुआशरा इनका अपना होता, तो वो खद्दाम को बुरा भला कहते कि वो किसी की नौजवान बेटी को अपने पास बटाए हुए था। लेकिन वहां सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इन्हें यह भी मालूम था कि खद्दाम बुरे चाल चलन का नौजवान नहीं है। इस मजलूमियत में भी मुसलमान मुतहद थे। लेकिन बाग में काम करने वालों में से एक ने कहा कि आतिश परस्त इधर क्या लेने आया था, इसे इधर लाया गया था। एक ने कहा, और लाने वाला हम में से कोई एक ही था, मालूम करो वो कौन हो सकता है। एक बूढ़े ने कहा, यहां सवाल एक लड़के और लड़की का नहीं है, ये जालिम और मजलूम का मामला है। यह हमारी आजादी और खुददारी का मामला है। आज अगर इस शख्स ने इसे जरा सी बात पर मुखबरी की है तो कल वो बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है। सब पर खामोशी तारी होगी। एक अधेड़ उम्र औरत ने, जो इन आदमियों के पीछे खड़ी थी, बोल पड़ी, बताती हूँ वो कौन है। इस औरत ने कहा और इन आदमियों में बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने हाथ लंबा करके उंगली से इसकी तरफ इशारा किया और पूछा, अबू नसर, तुम वहां इस टेकरी के पीछे खड़े क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं। कल तक कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।